are the feet that come into the house of the Lord to worship Him. क्या ही धन्य है वो कान जो उसके वचनों पे ध्यान लगा। Blessed are the ears that give attention to His words. Amen. Hallelujah. आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें Before we go into the word, come on, close your eyes. और एक सच्चे हृदय से आज आप उससे बात करें। And with a truthful heart, speak to Him. उसे बोलें, प्रभु मैं आज आपके भवन में आया हूँ। Tell Him, Lord, I've come into your house today. आपकी पवित्रता को निहारने, To behold your holiness. आपकी आवाज़ को सुनने। To hear your voice. प्रभु तू मुझे वो हृदय दे जो तेरी आवाज़ के लिए संवेदनशील हो। Lord, give me a heart that is sensitive to your voice. प्रभु वो कान दे जो तेरी धीमी आवाज़ जो पवित्र आत्मा की है वो उसको भी सुन ले। Lord, give me those ears that would hear the still small gentle whisper of the और Holy प्रभु Spirit. आज मेरी बुद्धि को खोल दे और मुझे वो समझ दे कि तेरे ज्ञान की, तेरी गूढ़ की बातों को मैं समझ सकूं। And Lord, give me the mind to understand the deep things of the Lord. क्योंकि प्रभु हम अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से तेरे प्रकाशन को नहीं समझ सकते। Because by our own wisdom, our own knowledge, we cannot understand your revelations. सो हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं So we come humbly and with meekness into your presence. और हम कहते हैं And we say, कि प्रभु हमें सिखा। Lord, teach us. पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, Dear Holy Spirit, you are our teacher. आप हमारे सहायक हैं, You are our helper. आप सत्य के आत्मा हैं। You are the Spirit of truth. हमें संपूर्ण सत्य में ले जा प्रभु। Lead us into all truth, Lord. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस जगह पे मौजूद है प्रभु, जो बाहर ओवरफ्लो में है और जो सारी ब्रांचेस में हमें इस समय देख रहे हैं। Lord, I thank you for every person that is present here, out there in the overflow, and all the branches that are hearing us right now. प्रभु हम आत्मा में एक हैं, We are one in the आप Spirit. सर्वव्यापी हैं, आपका आत्मा हर जगह है परमेश्वर। You are present everywhere. Your Spirit is present everywhere. और प्रभु आपका वचन कहता है कि जो यहोवा को लगन के साथ खोजते हैं परमेश्वर, आप उनको पुरस्कार देते हैं। And Lord, your word says, those who diligently seek the Lord, you reward them. सो आज जितने लोग आए हैं परमेश्वर वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। So Father, everyone who has come here today will not go empty-handed. प्रभु होने दे कि आज हर एक उस प्रार्थना निवेदन को आप सुने और पूरा करें जो जिस उम्मीद के साथ वो आपके भवन में आए हैं। For every prayer, every supplication, every request your people have brought today, let it be heard and fulfilled in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name. और कलीसिया कहे And the church said, आमेन आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। you all can be seated. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग इस सीरीज में हैं जिसमें हम लोग सीख रहे हैं प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु कौन है। We are in the middle of a series where we are learning of the revelation of Lord Jesus, who He is. हमने सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है। We learned how the Lord Jesus is the beginning and the end. हमने सीखा कि कैसे वो सनातन, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। How He is the God of the beginning. कैसे वो एक सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस पृथ्वी पर आता है। How He is the true light that gives light to every man that comes on this earth. आमीन। और लास्ट संडे क्या हुआ कि किसी ने मुझे मैसेज किया और बोला कि आप लोग संडे को क्यों मिलते हो, सब्त का दिन तो शनिवार को है। And what happened? Somebody messaged us last week and said, "Why do you meet on Sundays? Saturday is supposed to be the Sabbath ये day." आप लोग गलत करते हो। You do this. You don't do this right. क्योंकि सब्त का दिन जो है वो शनिवार को है, तो हमें शनिवार को मिलना चाहिए। Because the day of Sabbath is on Saturday, we should meet on Saturday. किसी को कहा है कभी, किसी ने सुना है आपने ऐसा लोगों को बोलते हुए? Has anyone ever heard this? बहुत सारे लोगों ने सुना है। Yeah, many people have heard.
और सो आज मैं वचन में से आपको बताना चाहता हूँ कि असली में शब्द का दिन कब है और शब्द का मतलब क्या है. So I want to tell you from the word, what does it mean to have a Sabbath day and what does it really mean to have Sabbath? Amen. मगर इससे पहले हम वचन की तरफ चलें. But before मैं we go चाहता to हूँ the आप इस आयत को ध्यान से सुने. Before we go into the word, I want you to hear this verse in मत्ती 11, 25 और 26वीं आयत में मैं इसको पढ़ देता हूँ. Matthew 11, 25 and 26. I'll उसी read it. समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपाया और बच्चों पर प्रकट किया है. उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया है. मैं चाहता हूँ आप ध्यान से इस बात को समझें. I want you to hear this carefully. परमेश्वर पिता का एक स्वभाव है There is a nature of our Father कि God वो अपने राज्य की जो बातें हैं that the things of His kingdom वो उन लोगों से छुपाता है जो अपनी नजर में बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान और समझदार हैं. He hides it from those people who think they are very knowledgeable, very wise in their own eyes. सो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं बहुत तर्क वितर्क करने वाला हूँ, कई बार लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं, मगर अगर आप वैसे अपने आप को सोचते हैं कि मैं दुनियावी रूप में बहुत बुद्धिमान हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पिता अपने स्वर्ग के राज्य की बातें आपसे छुपा देगा. So if you think you are very intellectual, you have great knowledge and you know many things, then the Lord will hide the things of His kingdom from you. और वो किस पर प्रकट करता है अपनी बातों को? And who will He reveal these things to? बच्चों पे. To kids, to babes, बच्चों पे. to babes. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करे, हमें जरूरी है कि हम छोटे बच्चों की तरह उसकी उपस्थिति में आए. If you want that the Father should reveal the things of His kingdom to you, then you have the need to come to Him like a small child. नम्रता और दीनता के साथ, With humility and meekness. अपने टाइटल लेके, मैं PhD हूँ, परमेश्वर पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता आप PhD हो, CHD हो, DHD हो. Not with your titles, I'm a PhD. The Father doesn't care if you're a PhD, DHD, THD, whatever. हमारे टाइटल हेवन रिकग्नाइज नहीं करता. The heaven does not recognize our titles. मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ. I'll say this again. स्वर्ग का राज्य आपके ओहदे, आपका समाज में कितनी इज्जत है, उससे स्वर्ग के राज्य को कोई लेना देना नहीं है. The kingdom of God has nothing to do with your stature, your titles in the society, how honored you are. It does not care. स्वर्ग का राज्य एक ही चीज देखता है, आप हृदय में कितने नम्र और दीन हैं. और अगर आप नम्र और दीन हैं तो पिता कहता है, इस व्यक्ति के ऊपर, मेरे इस बेटे के ऊपर, मेरी इस बेटी के ऊपर मैं अपने राज्य को, अपने गूढ़ की बातों को प्रकट करूंगा. And if you are humble, then the Father says, on this son of mine, on this daughter of mine, I will reveal the deep secrets of my kingdom. Amen. So अब जो हम हर संडे शिक्षा दे रहे हैं, कुछ बेसिक फाउंडेशन टीचिंग है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि जो कंफ्यूजन है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में वो दूर हो. The teachings we are giving